گزشتہ رمضان المبارک میں کراچی، حیدرآباد اور پورے ملک کے شہریوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے قانون اور سزا کی طاقت استعمال کیے بغیر صرف اپنی رات دن کی محنت اور جذبہ خدمت سے کراچی اور حیدرآباد کے ناجائز منافع خوروں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ رمضان المبارک میں شہریوں کو مناسب نرخ پر پھل اور سبزیاں فراہم کریں۔ 1989 کے رمضان المبارک میں خدمت خلق کمیٹی کی اس مہم کے دوران مہاجر قومی موومنٹ کے کارکنوں نے کراچی کے چپے چپے میں پھلوں اور سبزیوں کے سٹال لگائے، جہاں سے عوام کو پھل، سبزیاں اور افطار کے لیے استعمال ہونے والی دیگر اشیاء سستے داموں فراہم کی جا رہی تھیں۔ صرف کراچی میں تقریباً 1000 کے لگ بھگ سٹال لگائے گئے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور دیگر شہروں میں سستے پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیاء کے سٹال لگائے گئے۔ کلفٹن سے لے کر نئی کراچی تک اور کھارا در سے ملیر تک کراچی کا کوئی علاقہ یا محلہ ایسا نہیں تھا جہاں ایم کیو ایم کی خدمت خلق کمیٹی کے یہ سٹال عوام کی بے لوث خدمت سر انجام نہ دے رہے ہوں۔ اس موقع پر صرف پھل اور سبزیاں ہی نہیں رکھے گئے بلکہ بیشتر سٹالوں پر سموسے، پکوڑے، مشروبات کی بوتلیں، دیگر سامان بھی رکھا گیا، جبکہ گائے، بکری اور مرغی کے گوشت کے سٹال بھی لگائے گئے، جہاں بازار سے کہیں کم قیمت پر گوشت فراہم کیا گیا۔ گوشت کی عام دکانوں کے بجائے اب عوام کا ہجوم ان سٹالوں کے گرد نظر آنے لگا۔ کارکنان جتنے پھل، سبزیاں اور گوشت خرید کر لاتے، ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ اس صورتحال نے ناجائز منافع خوروں کو مجبور کر دیا کہ وہ قیمتوں میں کیا جانے والا ناجائز اضافہ ختم کر کے پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء انہی قیمتوں پر فروخت کریں جو رمضان المبارک سے پہلے تھیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے باتیں کرنے والی قیمتیں نیچے آنے لگیں اور ناجائز منافع خوری کا رجحان دم توڑنے لگا۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے رضاکارانہ طور پر 1 ماہ تک بغیر نفع و نقصان کے سبزیاں اور پھل عوام کو فروخت کیے۔ اس کے بدلے انہیں نہ کوئی معاوضہ ملا اور نہ ہی کوئی تمغہ دیا گیا۔ البتہ ان لاکھوں غریبوں کی دعاؤں کے تمغے ضرور ملے جنہیں ان سٹالوں کی بدولت سستے پھل اور سبزیاں میسر آئیں اور ناجائز منافع خوری سے نجات ملی۔ یعنی اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی رکھی ہے آپ نے، بہت سستا ہے یہاں، اور دکانوں میں سے بہت سستا ہے۔ نہیں آیا، اگر ایسے ہی اسٹال اگر اور لگ جائیں تو لوگ باغوں کو جو ہے نا ذرا فائدہ ہو جائے گا۔ اور بازار سے زیادہ چیپ ہے، ویسے بازار میں زیادہ ریٹ ہے، یہاں پہ چیپ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کنوں میں نے ابھی لیے ہیں، یہ بازار میں 18-20 سے کم نہیں ملتے، یہاں 12 روپے میں لیے۔ بہرحال یہ تو خدمت خلق ہے صاحب، اور جو کرے گا وہ اس کا ثواب بھی پائے گا اور پاپولرٹی بھی حاصل کرے گا۔ پہلے کسی سیاسی جماعت نے یا کسی نے بھی اس قسم کی کوئی تگ و دو نہیں کی ہے اس سلسلے میں، یہ صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کا کمال ہے۔ یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ اچھی بات ہے، خدمت کریے اور اس طرح پھر فائدہ ہوگا ملک کو، اور پھر دوسری پرائسز بھی ڈاؤن ہوں گی اس کے حساب سے، اور پھر سب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ رمضان کے ایسے مہینے میں افطار کے وقت ویسے بھی ضرورت پڑتی ہے، تو غریب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو نہ کہ وہ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں، تو ان کو پھر اچھا انہوں نے ایم کیو ایم والوں نے۔ بھئی بات یہ ہے نا کہ اگر اس طرح سے ہوگا تو دوسرے برابر میں بیچنے والے ہوں گے، وہ ضرور کم پیسے میں دیں گے۔ اگر یہ 60 دیں گے تو 10 کیسے بیچ سکتے؟ آپ لوگوں نے انتظام کیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت دل سے دعا نکلتا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے ان باتوں سے، اور خدا کرے کہ پورے پاکستان میں ایسا ہو جائے، یہ نظام اٹھایا جائے۔ ایم کیو ایم نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ یہ بازار قائم کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ فروٹ اسٹال کے بارے میں یہ ہے کہ مارکیٹ سے بہت سستا دام مل رہا ہے، لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے سستا ہے، حق پرس کا ہے، مال سستا ہے، بالکل فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ۔ ہمارے قائد الطاف حسین نے یہی سکھایا ہے، کوئی بھی آئے سب کو ایک ساتھ دیکھو،
जैसा अपने भाई हैं वैसे वो भी हमारे अपने भाई, उसी बात पे अमल करते हैं। आवाम की सहूलत के लिए उसमें हम ये नहीं देखते कि लेने वाला कौन है, पठान है, महाजिर है, सिंधी है, कौन है। हमारा काम ये है कि आवाम की खिदमत करना। अब कुछ दुकानदारों से भी खरीदा है, कुछ स्टॉलों से भी खरीदा है, वैसे स्टॉलों में सस्ता है। अच्छा ये नहीं भाई आप पठान हम आपको महंगा देंगे या पंजाबी आपको महंगा देंगे, लेकिन सबके लिए बराबर रखा उन्होंने जब हिसाब किताब। ये फ्रूट और सब्ज़ी के स्टॉल्स का ताल्लुक़ है, इससे ये ज़रूर हुआ है कि एक जो मुतवसत तबका और थोड़ा गरीब तबका, जो निचला तबका है, वो भी फल और सब्ज़ियाँ खाने के काबिल हो गया है रमज़ान शरीफ में। ये एक बहुत बड़ी खिदमत हो गई है कि हमारे बड़े ऐसा हो गई कि वहाँ जाते हैं 4 रुपये या 2 रुपये मिल जाते हैं। और नौजवान ऐसी हिम्मत करें तो सारी जिंदगी अल्लाह ताला और नौजवानों को इमदाद देगा। हमारी ये ख्वाहिश है बेटा। आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर MQM मैदान में आई है और ये खिदमत में सरगर्म है हमेशा। जब से MQM ने स्टॉल लगाए हैं तो हर चीज़ सस्ती हो गई है, दुकानदार भी ऑटोमेटिक जो है ना मजबूर हो गया है कि चीज़ों को सस्ता कर दे। और हम पंजाब के रहने वाले हैं, नहीं हमें भी वही दिया, इन्होंने कोई तफरीक नहीं की इस बारे में। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा जज्बा है। ये सिर्फ MQM वाहिद तंजीम है जिसने कदम उठाया है कि वो हर गरीब, उसमें का पंजाबी हो, पख्तून हो, सिंधी हो, कोई भी हो, इससे ये हर तासर से वालादार होकर ये हर एक के लिए यकसा तरीके से फ़रोख्त करती है। बात तो ये है कि इनका रवैया बड़ा अच्छा होता है, इनकी डीलिंग बड़े अखलाक के साथ ये पेश आते हैं। खुदा करे कि नौजवान नस्ल इस तरीके से आगे बढ़े और मुआशरा क्या, हमारा पूरा मुल्क सुधर सकता है इस किस्म के रेवोल्यूशनरी इकदाम से। तो इस तंजीम ने एक रूप फूंक दी है, यानी ये नहीं कि सिर्फ MQM के लोगों के अंदर, मेरे ख्याल में ऑल ओवर द कंट्री इस चीज़ से हुआ असर पड़ा है। ये जज्बा सलामत रहे तो हमारे ख्याल में हमारी कौम जो है कभी किसी से पीछे नहीं रहेगी। MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं ने हस्ब मामूल इस मुहिम में भी सिर्फ अहकाम और हिदायत जारी नहीं की, बल्कि ज़ाती तौर पर इस मुहिम में हिस्सा लिया। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं ने कराची और हैदराबाद में लगाए गए तमाम स्टॉलों के दौरे किए और कारकुनों की हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गुज़श्ता 11 सालों से इस किस्म के सस्ते स्टॉल लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस साल बहुत बड़े पैमाने पर यह स्टॉल लगाए गए थे जिसका चर्चा हर खास व आम में हुआ। गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में कराची, हैदराबाद और पूरे मुल्क के शहरियों ने ये हैरत अंगेज़ मंज़र देखा
कि MQM के कारकुनों ने कानून और सज़ा की ताकत इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ अपनी रात दिन की मेहनत और जज्बा खिदमत से कराची और हैदराबाद के नाजायज़ मुनाफाखोरों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को मुनासिब नर्ख पर फल और सब्जियाँ फराहम करें। 1989 के रमज़ानुल मुबारक में खिदमत खल्क़ कमेटी की इस मुहिम के दौरान महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने कराची के चप्पे चप्पे में फलों और सब्जियों के स्टॉल लगाए, जहां से आवाम को फल, सब्जियां और इफ्तार के लिए इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया सस्ते दामों फराहम की जा रही थीं। सिर्फ कराची में तकरीबन 1000 के लगभग स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और दीगर शहरों में सस्ते फलों, सब्जियों और दीगर अशिया के स्टॉल लगाए गए। क्लिफ्टन से लेकर नई कराची तक और खारादर से मलीर तक कराची का कोई इलाका या महल्ला ऐसा नहीं था जहां MQM की खिदमत खल्क़ कमेटी के ये स्टॉल आवाम की बेलौस खिदमत सर अंजाम न दे रहे हों। इस मौके पर सिर्फ फल और सब्जियां ही नहीं रखे गए, बल्कि बेशतर स्टॉलों पर समोसे, पकौड़े, मशरूबात की बोतलें, दीगर सामान भी रखा गया, जबकि गाय, बकरी और मुर्गी के गोश्त के स्टॉल भी लगाए गए, जहां बाजार से कहीं कम कीमत पर गोश्त फराहम किया गया। गोश्त की आम दुकानों के बजाय अब आवाम का हुजूम इन स्टॉलों के गिर्द नजर आने लगा। कारकुनान जितने फल, सब्जियां और गोश्त खरीद कर लाते, हाथों हाथ बिक जाता। इस सूरत हाल ने नाजायज़ मुनाफाखोरों को मजबूर कर दिया कि वो कीमतों में किया जाने वाला नाजायज़ इजाफा ख़त्म करके फल, सब्जियां और दीगर अशिया उन्हीं कीमतों पर फ़रोख्त करें जो रमज़ानुल मुबारक से पहले थीं। इस तरह देखते ही देखते आसमान से बातें करने वाली कीमतें नीचे आने लगीं और नाजायज़ मुनाफाखोरी का रुझान दम तोड़ने लगा। MQM के कारकुनों ने रज़ाकाराना तौर पर 1 माह तक बग़ैर नफ़ा नुकसान के सब्जियां और फल आवाम को फ़रोख्त किए। इसके बदले उन्हें न कोई मुआवजा मिला और ना ही कोई तमगा दिया गया। अलबत्ता उन लाखों गरीबों की दुआओं के तमगे ज़रूर मिले जिन्हें इन स्टॉलों की बदौलत सस्ते फल और सब्जियां मुयस्सर आईं और नाजायज़ मुनाफाखोरी से निजात मिली। यानी इससे ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही होना चाहिए, रमज़ान के अलावा भी होना चाहिए। बड़ी अच्छी रखी है आपने, बहुत सस्ता है यहाँ और दुकानों में से बहुत सस्ता है। नहीं आया, अगर ऐसे ही स्टॉल अगर और लग जाए तो लोग बागों को जो है ना ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। और बाजार से ज़्यादा चीप है, वैसे बाजार में ज़्यादा रेट है, यहाँ पे चीप है। मेरा ख्याल ये है कि ये किन्नू मैंने अभी लिए हैं, ये बाज़ार में 18-20 से कम नहीं मिलते, यहाँ 12 रुपये में दिए। बहरहाल ये तो खिदमत खल्क़ है साहब, और जो करेगा वो इसका सवाब भी पाएगा और पॉपुलरिटी भी हासिल करेगा। पहले किसी सियासी जमात ने या किसी ने भी इस किस्म की कोई तगदो नहीं की है इस सिलसिले में। ये सिर्फ MQM के कारकुनों का कमाल है। ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। अच्छी बात है, खिदमत करिए और इस तरह फिर फ़ायदा होगा मुल्क को, और फिर दूसरी प्राइसेस भी डाउन होंगी इसके हिसाब से, और फिर सब लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचेगा। रमज़ान के ऐसे महीने में इफ्तार के वक्त वैसे भी ज़रूरत पड़ती है, तो गरीब लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो न कि वो लोग यहाँ से ले सकते हैं, तो उनको फिर अच्छा उन्होंने MQM वालों ने। भाई बात ये है ना कि अगर इस तरह से होगा तो दूसरे बराबर में बेचने वाले होंगे, वो ज़रूर कम पैसे में देंगे। अगर ये 60 देंगे तो 10 कैसे बेच सकते? आप लोगों ने इंतज़ाम किया है MQM की जानिब से, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दिल से दुआ निकलता है, तबीयत खुश होती है इन बातों से, और खुदा करे कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो जाए, ये निज़ाम MQM ने एक अच्छा इक़दाम किया है कि ये बाज़ार कायम करके लोगों के लिए आसानी पैदा की है। फ्रूट स्टॉल के बारे में ये है कि मार्केट से बहुत सस्ता दाम मिल रहा है, लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ज़ाहिर है सस्ता है, हक बस का है, माल सस्ता है, बिल्कुल फ़ायदा पहुँच रहा है। हमारे कायद अल्ताफ़ हुसैन ने यही सिखाया है, कोई भी आए सबको एक साथ देखो, जैसा अपने भाई हैं वैसे भी हमारे अपने भाई,
उसी बात पे अमल करते हैं। आवाम की सहूलत के लिए उसमें हम ये नहीं देखते कि लेने वाला कौन है, पठान है, महाजिर है, सिंधी है, कौन है। हमारा काम ये है कि आवाम की खिदमत करना। अब कुछ दुकानदारों से भी खरीदा है, कुछ स्टॉलों से भी खरीदा है। वैसे स्टॉलों में सस्ता है। नहीं भाई, आप पठान हम आपको महंगा देंगे या पंजाबी आपको महंगा देंगे, लेकिन सबके लिए बराबर रखा उन्होंने जब हिसाब किताब। ये फ्रूट और सब्ज़ी के स्टॉल्स का ताल्लुक़ है। इससे ये ज़रूर हुआ है कि एक जो मुतवसत तबका और थोड़ा गरीब तबका, जो निचला तबका है, वो भी फल और सब्ज़ियाँ खाने के काबिल हो गया है रमज़ान शरीफ में। ये एक बहुत बड़ी खिदमत हो गई है कि हमारे बड़े ऐसे हो गए कि वहाँ जाते हैं 4 रुपये यहाँ 2 रुपये मिल जाते हैं। और नौजवान ऐसी हिम्मत करें तो सारी जिंदगी अल्लाह ताला और नौजवानों को इमदाद देगा। हमारी ये ख्वाहिश है बेटा। आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर MQM मैदान में आई है और ये खिदमत में सरगर्म है हमेशा। जब से MQM ने स्टॉल लगाए हैं तो हर चीज़ सस्ती हो गई है। दुकानदार भी ऑटोमेटिक जो है ना मजबूर हो गया है कि उस चीज़ों को सस्ता कर दे। और हम पंजाब के रहने वाले हैं, नहीं हमें भी वही दिया। इन्होंने कोई तफरीक नहीं की इस बारे में। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा जज्बा है। ये सिर्फ MQM वाहिद तंजीम है जिसने ये कदम उठाया है कि वो हर गरीब, उसमें का पंजाबी हो, पख्तून हो, सिंधी हो, कोई भी हो, इससे ये हर तासुस से बालातर होकर ये हर एक के लिए यकसा तरीके से फ़रोख्त करती है। बात तो ये है कि इनका रवैया बड़ा अच्छा होता है, इनकी डीलिंग बड़े अखलाक के साथ ये पेश आते हैं। खुदा करे कि नौजवान नस्ल इस तरीके से आगे बढ़े और मुआशरा क्या, हमारा पूरा मुल्क सुधर सकता है इस किस्म के रेवोल्यूशनरी इकदाम से। तो इस तंजीम ने एक रूह फूंक दी है, यानी ये नहीं कि सिर्फ MQM के लोगों के अंदर, मेरे ख्याल में ऑल ओवर द कंट्री इस चीज़ से हुआ असर पड़ा है। ये जज्बा सलामत रहे तो हमारे ख्याल में हमारी कौम जो है कभी किसी से पीछे नहीं रहेगी। MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं ने हस्ब मामूल इस मुहिम में भी सिर्फ अहकाम और हिदायत जारी नहीं की, बल्कि ज़ाती तौर पर इस मुहिम में हिस्सा लिया। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं ने कराची और हैदराबाद में लगाए गए तमाम स्टॉलों के दौरे किए और कारकुनों की हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गुज़श्ता 11 सालों से इस किस्म के सस्ते स्टॉल लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस साल बहुत बड़े पैमाने पर यह स्टॉल लगाए गए थे जिसका चर्चा हर खास आम में हुआ।